Hello students, बच्चे today we will start your chapter number 13. Today is 23rd November 2020 and today we will start with your chapter number 13, probability. Is it clear beta? Now in this chapter beta we will study topic number 13.2, conditional probability. Conditional probability. Is it clear beta? Now regarding this, first of all I would like to tell you the definition 1. If E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred, that is probability of E when F have occurred. ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा, probability of E when F has occurred is given by, जब हमारे पास दो इवेंट दे रखे हैं उनमें से एक इवेंट हो चुका हो तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे. ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F will be probability of E intersection F upon probability of F, provided probability of F is not equal to 0. Clear beta? This is the formula which we will use to solve our questions. After this बच्चे regarding this conditional probability we have some properties. That is topic number 13.2.1, that is properties of conditional probability. ठीक है बेटा, इसमें आप देखिए प्रॉपर्टी 1. इन दिस बच्चे probability of S upon F
will be is equal to probability of f upon f, that will be is equal to 1. Property 2. If A and B are any two events of a sample space S and F, इसमें S क्या बेटा, S is a sample space, ठीक है, ये जो S है that is sample space. Here S is equal to sample space. And F is an event of S such that PF is not equal to 0, then जब ऐसी सिचुएशन होगी तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बच्चे, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, probability of A union B when F have occurred, that will be is equal to probability of A upon F plus probability of B upon F minus probability of A intersection B upon F. क्लियर बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2. देन बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 3. Property number 3. Have a look at property number 3. If probability of E naught when F have occurred, that is equal to 1 minus P E upon F. Clear beta? This is the definition and these are your properties of probability. Clear बच्चे? Now dear, we will start few examples. Like we will take your example number 1. What is your example 1 saying? It is saying if probability of A is equal to 7 by 13, probability of B is equal to 9 by 13, and probability of A intersection B, that is equal to 4 by 13. And what your question is saying, you have to evaluate probability of A when B have already occurred. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया. क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन हमें जो गिवन है, देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्या पहचानती है ऐसे फॉर्मूले की, जब A अपॉन B होगा तो ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे कौन सा आएगा बेटा, जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B. अब इसकी वैल्यू तो 4 बाई 13 है और B की वैल्यू बेटा आपकी 9 upon 13. Further solving 4 by 13 divide by 9 by 13, that will give 4 by 13 into 13 by 9.
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन फाइनली यू विल गेट आंसर 4/9. नाउ मूव टू योर एग्जाम्पल नंबर 2. व्हाट इज योर एग्जाम्पल नंबर 2 सेइंग? A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy? At least one of them is boy. देखो जब पेपर में आएगा ना बेटा, आपको ये पता नहीं चलेगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का है, जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्वेश्चन. अभी तो आपको पता है कि मैंने अभी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कराया है, इसीलिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा. ये पहचान है इसकी. गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर चिल्ड्रन आर बॉयज, गिवन दैट अगर ऑलरेडी एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट चेक इट ऑन. हम क्या मान लेते हैं? लेट बी इज फॉर बॉय एंड जी इज फॉर गर्ल. ठीक है बेटा. अब इसमें से देखो हमारा जो हम एस बनाएंगे, ये एस क्या? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस. जो सैंपल स्पेस है बेटा हमारा, वो क्या कहेगा? देखो या तो फर्स्ट बॉय होगा, दूसरा भी बॉय होगा, फिर या तो फिर बेटा फर्स्ट वाली गर्ल हो सकती है, दूसरे वाला बॉय हो सकता है, फिर बेटा फर्स्ट वाला बॉय सेकंड वाला गर्ल. ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए ना दोनों में से, तो दोनों भी बॉय हो सकते हैं. फिर आगे बेटा और क्या हो सकता है? दो बच्चे हैं फैमिली में, तो दोनों बॉय हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, पहले वाला लड़का दूसरे वाला लड़की हो सकता है, और बेटा दोनों गर्ल भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. अब इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं. लेट ई कौन सा? ई इज द इवेंट दैट बोथ आर बॉयज. और बेटा एफ कौन सा इवेंट हो गया? एफ इज द इवेंट दैट एट लीस्ट one of the child is a boy. क्लियर बेटा. अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट बोथ आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज when this condition is fulfilled, at least one of them should be boy. तो बेटा इसके लिए हमें सिंपल वापस यहाँ जाते हैं. पहले इंटरसेक्शन आएगा दोनों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. चलो निकालते हैं. इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले, ई एंड एफ का इंटरसेक्शन. तो ई में हमारे क्या क्या आएगा? ई में तो बेटा सिर्फ ये आ गया बी कॉमा बी. और हमारे एफ में क्या क्या आएगा? देखो यहां लिख देती हूं मैं. एफ के उसमें क्या क्या आएंगे? कौन कौन से आएंगे? सैंपल स्पेस. ये पहले लिखना था फॉर्मूले से. ठीक है, एफ में कौन कौन से सैंपल स्पेस आएंगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय. कम से कम एक लड़का होना चाहिए. तो इसमें बी कॉमा बी आ जाएगा, फिर जी कॉमा बी गर्ल बॉय, फिर बॉय गर्ल. ये वाला तो आएगा नहीं. ठीक है, क्योंकि
कम से कम एक लड़का होना चाहिए। अब इसमें और इस वाले में ध्यान से देखो, इसमें और इसमें, ई और एफ में, ई और एफ से हम क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है ना, बी कोमा बी। अब इसकी क्या निकालेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, ये कितना है 1, तो 1/4। ठीक है। अब हम निकालेंगे नीचे वाली प्रोबेबिलिटी एफ। एफ क्या है 1 2 3, टोटल कितने थे 4, तो बच्चे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलिए करते हैं, 1/f/4, 1/4/3/4। ठीक है, 1/4 into 4/3, फाइनली वी विल गेट आंसर 1/3। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द एग्जाम्पल सॉल्व्ड इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर बेटा। नाउ आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज because it is already filled. Let me adjust this sheet. ठीक है बेटा, okay. Now let me start your example number 3. Example number 3. What it is saying, 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number, that it is an even number। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं, लेट ए क्या लेट कर लेते हैं, इवेंट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज इवन, ड्रॉन इज इवन। इसके अंदर बेटा क्या क्या आ जाएंगे, ए में क्या क्या आ जाएगा, इवन नंबर 2 4 6 8 10। दूसरा बी, इवेंट द नंबर ऑन द कार्ड is greater than 3, is greater than 3। अच्छा, greater than 3 में क्या क्या आएगा बेटा,
फाइनल सैंपल स्पेस क्या है और हमारा एस क्या है बच्चे? एस मीन सैंपल स्पेस 1 to 10 के कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कार्ड सिर्फ कितने हैं? 10। तो बी के हमारे सेट में क्या क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्ड्स इज ग्रेटर देन 3 से ज्यादा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर बच्चे? अब इसके अंदर हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैव अकर्ड। इसमें बच्चे हमारा क्या निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए ये वाला तो फॉर्मूला यूज होगा ना बेटा हमारा, ठीक है। चलो अब हम क्या निकाल लेते हैं? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए और बी में कॉमन क्या क्या है? क्या क्या कॉमन है? 4 6 8 10 ये कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले ए इंटरसेक्शन बी की। कितने है ये? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 10। तो 4/10, ठीक है। अब बच्चे हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यही निकाल लेते हैं। चाहिए ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी? ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 10 इस फॉर्मूले में आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/10 अपॉन 7/10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/10 into 10/7 and finally we will get answer 4/7। क्लियर बच्चे? Got it? Your example number 4 you have to do from your side and it is very important one. ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल 4 डू योर सेल्फ and it is important also. Let me rotate this page now. Let me check it once again. Clear बच्चे? Now just have a look. Your example number 5. Really very important question. It is saying a die is thrown three times events A and B are defined as below. What is A beta? 4 on the third row and what is B beta? 6 on the first and 5 on the second row. What we have to do? We have to find the probability of A given that B has already occurred. Let's start solution. पहले बेटा हमें सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए। सैंपल स्पेस टोटल कितने होंगे? 216 टोटल एस।
मीन्स टोटल सैंपल स्पेस। ये आपने 9th-10th में भी सीखा होगा कि जब किसी डाई को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, 216। इज इट क्लियर बेटा? इसमें से जो हमारे ए के अकॉर्डिंग है 4 ऑन द थर्ड रो, ए के अकॉर्डिंग जो सैंपल स्पेस है वो मैं आप लोगों का लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो 1 1 4, फिर बेटा 1 2 4, ठीक है, और फिर बेटा आपका डैश डैश डैश, ये आपका 1 6 4। फिर आपकी 2 वाली लाइन स्टार्ट होती है 2 1 4 3 1 4, ये वाली भी आएंगी, ये भी आएगा बेटा 2 6 4, ठीक है। ऐसे ही आपका 3 1 4 3 2 4, और ये चलते चलते आपका 3 6 4। ऐसे ही आपका 4 वाला भी आएगा बेटा 4 1 4 4 2 4 4 6 4 5 1 4, 5 वाली लाइन से भी आएंगे 5 2 4, ये भी आएंगे। बीच में जो लीव किए ना बेटा आपके मैंने 3 4 4, वो वाले भी आएंगे 5 3 4। फिर आपके 6 वाले भी आएगी 6, ठीक है बच्चे। अब दूसरा जो आपका बी जो है, आपका बी इवेंट क्या कह रहा है, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रू। मतलब पहली पे 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये तो सारे कैंसिल हो गए। 6 इनसे तो स्टार्ट होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, तो 6 आ गया। अब सेकंड पे 5 आना चाहिए भाई, सेकंड पे क्या आना चाहिए 5, मतलब सेकंड पे ना तो 1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3, ना 4, ना 6, सेकंड पे क्या आएगा 5। थर्ड पे 1 भी हो सकता है, फिर थर्ड पे 2 भी हो सकता है, थर्ड पे बेटा 3 भी हो सकता है, थर्ड पे आपका 4 भी हो सकता है, फिर आपका 5 भी हो सकता है, और आपका 6 भी हो सकता है। ये आपका ए के सैंपल स्पेस, ये आपके बी के सैंपल स्पेस। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो फाइनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, उसमें हम इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले ही निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा है कॉमन बेटा, देखो ये तो कॉमन होंगे नहीं, 6 वाले होंगे, ठीक है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे बीच में जो हमारा है वहां से कॉमन आएंगे बेटा, और हमारा वाला कॉमन वाला देखो इससे पहले ये भी है, मैंने बोला है ना, ये पूरी लाइन होगी आपकी। जैसे ये पूरी कर देती हूँ मैं, 1 3 4 भी आएगा, 1 4 4 भी आएगा, 1 5 4 भी आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये हर एक में आएंगे आपके। ये जो प्लेस है जो आपका यहाँ पे 2 आएगा, ये बीच वाला वैल्यू बदलेगी आपकी, 2 से तो स्टार्ट हो ही रहे हैं सारे, लास्ट में 4 आएगा, बीच के वैल्यू बदलेंगे 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ऐसे बेटा हमारा यहाँ पर एक और आ रहा है 5,4, ठीक है। इसके बाद एक और आएगा, क्योंकि आएगा ही नहीं 4 है यहाँ पे, तो इससे पहले जो आने थे वो है 6,3,4, एक और आना था 6,4,4, टोटल 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे ही ये सारी भी पूरी हो जाएंगी, आप अगर करना चाहो तो कर लेना इनको। मेन हमारा काम यहाँ से होना था। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है बेटा, ठीक है, 6,5,4 दिस इज कॉमन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/216। क्यों, क्योंकि ये तो 1 है अकेला और ये सारे कितने हैं 216,
ऐसे ही बेटा हमें किसकी निकालनी है, बी की प्रोबेबिलिटी, किसकी, बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी में है कितने, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसी के आगे हम निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/216। अब हम फाइनली जब फॉर्मूला लगाएंगे, ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/216 अपॉन 6/216, 1/216 इंटू 216 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट आंसर 1/6। ठीक है बेटा, पूरी एक्सरसाइज में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, इसी के बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 7 आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना। इज इट क्लियर बेटा? सो you have to do your exercise 13.1. what you have to do, complete remaining examples and do exercise 13.1 in your fair notebook. If you face any doubt, any problem in any question, you can tell me. I will provide video lecture solution on the same topic to you. Is it clear beta? So that's all for today. Thank you and enjoy your day.